Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Naseem, I'm Dean of Engineering at the Institute of Southern Punjab. Institute of Southern Punjab is the largest university in the South Punjab, which has got almost 20 departments, and it has got more than 100 programs. There are 80 to 90 PhD faculty. Practically, I must tell you, it's an education city in its own. You have got many departments: law department, pharmacy, physics, chemistry, engineering, and then we have got Urdu, English, Islamic studies, so more than 20 departments. So since we are going to talk about the Department of Engineering, and today, last time we discussed about the mechanical engineering, today my interaction is going to be with the electrical engineering. I'd like to introduce you first our Dr. Rizwan, who has done his PhD from one of the leading university of France, and he's with us after serving other universities. And Dr. Saab, Assalamu alaikum. I think we will talk about the electrical engineering, and then afterwards I'll talk with one of our senior faculty, Munib Khan, and he will talk about the electrical system. Dr. Saab, pehle aap bataiye about the departments, programs, degrees and systems you have got. First of all, thank you very much for inviting me here and providing me this opportunity to discuss about electrical department and excellent facilities provided by ISP. I would start first of all about electrical engineering, why it is important, and why the students should be considering it for the future field of study. Right. At the core of it, electrical engineering basically deals with the understanding and utilization of fundamental forces of electricity, magnetism, electromagnetism, and electronics. Right. So from here, you can understand that electrical engineering, one of the appealing or compelling feature of electrical engineering is that its scope is very diverse. Yes, it is. Most of the other engineering disciplines, their scope is not as diverse as electrical engineering. Right. There are many subfields of electrical engineering where you can excel further. For example, you can go into the power systems, you can go into electronics, you can go into telecommunication, you can choose control and automation, you can go to signal processing, etc. Telecommunications. So there are many options which you can pursue once you enrolled in the electrical engineering. Right. Computer system is Computer also systems. So computer engineering and electrical engineering are very interlinked, Right. very closely attached to each other, because computer science generally deals with the development of algorithms, but at the end of the day, those algorithms have to be implemented on some hardware. Yes, and when you talk about the hardware, here comes the electrical engineers. Right. So, so there are many fields you can choose from. Now, the important thing here is that, for example, you are interested about power. For example, Right. your interest lies how the power is generated. Right. So, what are the different mechanisms we can use to generate the power? Right. And once that power is generated, how that power from the far-off region Right. is transported to the cities. Yes. Once it reaches the cities, how it is distributed to the households and the industries, and Transmission and distribution. and finally right. how it is being utilized. Right. So if your main interest lies in that field, how the power generates, transmits, distributes, and finally utilized, Right. You can opt for the power system specialization. Right. And we have the courses in our This is the curriculum. broader electrical engineering, So the अगर broad आपको spectrum. पावर का इंटरेस्ट right. है right. तो आप इस पूरी जो एक ग्रिड है, जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनली यूटिलाइजेशन, Right. इसको स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर कोर्सेज Right, अवेलेबल हैं. right. ऑन द अदर हैंड, अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, यू आर मोर इंटरेस्टेड इन इम्प्लीमेंटिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. फॉर एग्जांपल आपके टीवीज हैं, आपके एम्बेडेड सिस्टम्स हैं जो कि माइक्रोवेव ओवन में मौजूद है, एसीज में मौजूद है. If you are more interested with this kind of engineering field, And you have got a subject offered on हमारे this. पास इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑप्शंस भी मौजूद हैं. सो वी हैव द कोर्सेज इन करिकुलम जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी बात करते हैं. ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन कम्युनिकेशन, यू आर मोर अपील्ड कि यार ये कैसे मुमकिन है, how is it possible that I pick up a mobile phone, Yes. I dial a number, and I can connect to anyone sitting, let's suppose, in New York. Right. So how we are enabled to communicate
telecommunications. So here comes the telecommunications. So, So अगर आपका right. इंटरेस्ट वहाँ पे है, you also have the courses in the electrical curriculum जो कि इसके ऊपर बात करते हैं. Similarly, if you are more interested in the industry, industry के अंदर automation कैसे हो रही है, manufacturing process को कैसे control किया जाए, robotics वहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं. If you are more interested with that kind of field, so आप control and automation के साइड पे जा सकते हैं. Similarly, if you are more interested to talk about the signals, for example, आपका जो audio signal है, आप उसके analysis की बात करना चाहते हैं, या आप की जो रेडियो कम्युनिकेशन हो रही है, मोबाइल कम्युनिकेशन, आप उसको स्टडी करना चाहते हैं, अगेन आपके पास करिकुलम के अंदर इसके कोर्सेज भी मौजूद हैं. Practically, you produce electrical engineer which carries the knowledge of all these domains. That's the point कि आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर there are so many different areas जिसको आप हिट कर सकते हैं. Right. This is something जो कि आई थिंक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूनिक है compared to other engineering fields. So that's the main attraction of electrical engineers, the scope. Regarding the scope of electrical engineering, you can understand कि इन तमाम fields की जो application है वो आप अपने around इसको observe कर सकते हैं. Very Even true. right now, I'm sitting here in the studio. If I look around, I will find many electrical devices, starting from the microphone, to the lighting, to the speakers, finally the cameras, and finally ये जब program record होगा, इसकी editing, processing, उसके लिए भी the equipment, that's electrical equipment. Very true. If you observe around yourself, you will find yourself surrounded by the electrical devices. Correct. And finally, in सब devices को अगर आप देखें, तो they are powered by the electricity. Again, a field of electrical engineers. Very true. So I think आप अगर electrical engineer की significance को understand करना चाहते हैं, you just need to observe your surrounding and you will find everywhere you have the electrical. हर जगह मौजूद You है. better come and pursue the education of electrical engineering. So basically, the scope of electrical engineering is enormous, and the important thing is it's continuously growing. Yes, it is growing, right. पिछले 2 decades के अंदर जितनी भी innovations हुई हैं, inventions हुई हैं, अगर आप उनको ज़रा list down करें तो आपको नज़र आएगा कि उनमें mostly innovations के अंदर electrical played a major role. Right. For example, one of the biggest innovation is that smartphone. इसके बगैर शायद आज हम कुछ घंटे भी नहीं गुजार सकते. अगर आप इस स्मार्टफोन को उठा के देखें तो इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी है. Correct. ठीक है. So you have a CPU. So इलेक्ट्रॉनिक सर्किट भी इसके अंदर मौजूद है. Then you have the antennas जो कि अभी कम्युनिकेशन को enable करें. So कम्युनिकेशन भी इसके अंदर मौजूद है. Then you have the बैटरी जो इस पूरे सिस्टम को पावर कर रही है. So पावर का कंपोनेंट भी इसके अंदर मौजूद है. So that is the scope of electrical engineering जिसको आप अपने around observe कर सकते हैं. So if you choose electrical engineering, you have the option to go into all of these fields जिसके ऊपर मैंने भी A lot of developments are taking place in the electrical engineering coupled with computer. And sometimes it's very strange. Sometimes people come and say कि electrical का scope कम हो रहा है. And I'm surprised कि वो कैसे इस argument को पेश करते हैं, because I don't understand. क्योंकि पिछले 2 decades के अंदर जितनी भी innovations हुए हैं उसमें electrical ने major role play किया है, and it's not going anywhere. आप electricity के बगैर अपनी life को imagine नहीं कर सकते. आप smartphone के बगैर अपनी life को imagine ही नहीं कर सकते. So it is there. And it is going to even expand. So आपकी research की opportunities electrical के अंदर बहुत ज़्यादा हैं. बहुत ज़्यादा opportunities. Power से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके कम्युनिकेशन सब फील्ड्स के अंदर. कम्युनिकेशन में आज से 2 decades पहले यू यूज्ड टू हैव अ मोबाइल फोन जिसमें सिर्फ आप कॉल कर सकते थे. आज आफ्टर 2G, 3G, 4G and now we are moving towards 5G. एक स्मार्टफोन बेसिकली आपका पूरा कंप्यूटर है. You can do everything sitting in your office or anywhere you can use that. डॉक्टर साहब कौन सी डिग्रीज आप ऑफर कर रहे हैं? Okay, electrical department में we are offering 3 degrees. One is BSc Electrical Engineering. It's a 4-year program, and it is accredited by the Pakistan Engineering Council. इसके अलावा हम MSc भी BSc Electrical Engineering Technology का program है, उसको भी offer कर रहे हैं, which is also accredited by the National Technology Council (NTC). And the 3rd degree we are offering is the Master's program MS Electrical Engineering जो कि HEC से recognized. Right. जो हमारा इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, इलेक्ट्रिकल के अंदर बहुत से सब फील्ड्स हैं. पावर भी है, कम्युनिकेशन भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है. तो जो हमारा करिकुलम है, वी हैव डिजाइंड दैट करिकुलम इन सच अ वे कि हम तमाम फील्ड्स को जो है वो टच करें. सो वी हैव द कोर्सेज, पावर से रिलेटेड भी हैं, पावर ट्रांसमिशन का कोर्स भी है, पावर जनरेशन का भी है, इस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज भी हैं हमारे पास, कम्युनिकेशन के कोर्सेज भी हैं. सो हमारे करिकुलम में वी काइंड ऑफ ट्राई टू कवर ऑल दोज
major In different components of- semesters, you have different got all semesters. this spread out, And right? from this year onwards, because there's that growing interest in the artificial intelligence and machine learning, so from this semester onwards, हमने जो नया हमारी intake आएगी, उसके अंदर 8th semester में हमने machine learning का course भी add किया है, ताकि जो जबरदस्त। students जो हैं electrical के, they also get an exposure about the machine learning as Machine language. जी जी machine learning. This is great. This So we have the curriculum, and then we have state-of-the-art laboratories. हमारे पास 10 laboratories हैं. There's a laboratory of power generation. They are one of the power best transmission. labs you have got So we equipped have with. 10 laboratories जिसके अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट अवेलेबल है, पावर से रिलेटेड भी है, कम्युनिकेशन की लेबॉर्ट्री भी हमारे पास मौजूद है, कंट्रोल की लेबॉर्ट्री भी है, हमारे पास मशीन्स की लेबॉर्ट्री भी है, एंड देन वी हैव एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. इन सब लेबॉर्ट्रीज में हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को करवाते हैं. जो भी थ्योरी है उसके ऊपर बाद में वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो. And you have got outcome-based system as well, Yeah. which you are following the Washington Accord. जी जी. So we have implemented OB based system since 2018. So Right. पिछले 5 साल से हम OB के ऊपर अपने सिस्टम को जो है implement कर रहे 15 हैं. से हमारा ये बैच जो So था जो ना, पहला 14 batch वाला था, प्रीवियस में जी, गया जी. था वॉल्यूम 7 पे, जी, जी. and 15 intake was on the OBE, जी, volume 14, जी, जी. outcome based education. जी, जी. Since then we are following So that we are thing. following Right, OB system. right. Basic idea जो लोग OB के बारे में नहीं जानते, so basic idea है इसके जो conventional teaching थी, that was more about what the teacher is teaching. Right. OB के अंदर हमारा जो emphasis है वो shift हुआ है. Now the emphasis is not कि teacher क्या teach कर रहे हैं, the emphasis is Student what the focus. student is learning. Yes. So basically yes. teacher centric approach को change करके हमने student centric approach की तरफ shift करना है. Correct. And that is basically OB system. Yes, yes. One issue जो हमारे conventional system है वो ये भी है कि एक बच्चा जब पास आउट करता है तो उसको हम एक CGPA दे देते हैं. सो 3.3 3.5 एक CGPA एक नंबर मिलता है. अब उस नंबर के बेस पे आप ये तो बता सकते हैं कि ये बच्चा एक अच्छा स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है या पुअर स्टूडेंट है, बट यू कैन नॉट टेल अबाउट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, स्किल्स के बारे में बात नहीं कर सकते हैं. ठीक है, देयर इज एवरी चांस कि एक स्टूडेंट है उसके पास नॉलेज बहुत है, he knows his subject, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता. Correct. So, एक एट्रीब्यूट उसके पास है, नॉलेज है, लेकिन जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो एट्रीब्यूट उसके पास नहीं है. नहीं है. ठीक Right, है, right. उसके पास नॉलेज है लेकिन somehow he understands the problem, लेकिन वो सोल्यूशन डेवलप नहीं कर सकता. सो अगेन उसके पास नॉलेज है लेकिन सोल्यूशन डेवलपमेंट की एबिलिटी उसके पास नहीं है. तो OB सिस्टम में बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि हमारे पास टोटल 12 एट्रीब्यूट्स हैं. हमने स्टूडेंट्स को उन एट्रीब्यूट्स के ऊपर भी गेज करना है कि उसके पास नॉलेज है, एनालिसिस कर सकता है, सोल्यूशन डेवलप कर सकता है, Solution provider हो, solution likewise communication skill पे स्किल्स हो, हो, टीम वर्क उसके अंदर मौजूद Team हो, work में approach मैनेजमेंट हो. स्किल्स हो उसके पास. Right, ठीक है, right. सो हमारे पास टोटल 12 एट्रीब्यूट्स हैं जिसको हम evaluate करना चाहते हैं इन द OB सिस्टम. Wonderful. सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि ना सिर्फ उसके पास CGPA हो लेकिन इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स के ऊपर उसकी स्टैंडिंग हमें right, पता चले right. basically. माशाल्लाह डॉक्टर साहब आपने बड़ा elaborate किया है. I think our listeners would be definitely listening to this illustrative about the illustration about the electrical engineering and the system you are following and the degrees. Let's talk to our second guest, our faculty member, Muneeb Khan. Muneeb Khan, tell us what you are looking after and how is your system, which subjects are you teaching and which is your special area of. थैंक यू डॉक्टर साहब. मैं इसमें थोड़ा सा बताना चाहूँगा पावर जनरेशन के हवाले से और पावर सिस्टम्स जो हैं वो किस तरह से इंपॉर्टेंट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर. ठीक है, हमारे पास ISP के अंदर डिफरेंट लैब्स हैं जिसमें पावर ट्रांसमिशन सिस्टम की लैब है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड पावर जनरेशन लैब है. ओवरऑल बेसिकली जो पावर सिस्टम है वो इसके डिफरेंट एरियाज़ हैं कि जो पावर जनरेशन है वो हम कन्वेंशनल सोर्सेज के थ्रू भी पावर जनरेट करते हैं. इसके अलावा हम उसके अंदर जो पावर जनरेशन है वो हम रिन्यूएबल सोर्सेज जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं हम उनके थ्रू भी पावर जनरेट करते हैं. अब जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं लाइक कोल, ऑयल वगैरह है, इसमें हमारे पास सिंध के अंदर जो थर पार करके बहुत बड़े कोल के वसाइल हैं. 185 बिलियन जो है टन्स इसके कोल के जो है हमारे पास रिसोर्सेज हैं. इन रिसोर्सेज के थ्रू हम लोग जो है कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के ज़रिए हम पावर जनरेट कर सकते हैं. इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा जो अलुमनाई हैं जो पास आउट हो चुके हैं ISP से वो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं. इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि सिंध के अंदर हमारे पास जो हब के अंदर बलूचिस्तान में वहाँ पर भी कोल फायर्ड पावर प्लांट है. इसके अलावा जो साहिवाल के अंदर कोल फायर्ड पावर प्लांट है, ठीक है, CPAC के अंडर काम कर रहे हैं. इनमें हमारे काफ़ी सारे अलुमनाई ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं. वंडरफुल बात यह है कि जो सिंध के अंदर एक लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है HVDC की, जिसके थ्रू हम पावर जनरेट करके
उस लाइंस के थ्रू हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं मिटियारी टू लाहौर। अब इस लाइंस में जो कि तकरीबन 4000 मेगावाट एवैक्यूएटेड कैपेसिटी है, जिसके थ्रू हम पावर को उधर से हम यहाँ पर ला रहे हैं पंजाब के अंदर। अब इस लाइंस में काफ़ी सारे सब स्टेशंस हैं, इनमें भी हमारे काफ़ी सारे अलुमनाई काम कर रहे हैं। तो इसका अब यहाँ पर जो इसके पीछे बैकग्राउंड है, जिसके पीछे हमारी फैकल्टी की मेहनत है, वो क्या है कि ट्रांसमिशन लैब्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लैब्स हैं, जनरेशन लैब्स हैं। इसके अंदर उनका जो वर्किंग है, इसके अंदर जो उसकी एफर्ट है उनकी, वो बहुत ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। और उनका जो एरिया है, रिसर्च एरिया, लाइक सोलर के अंदर आप ये देख लें कि स्कैप्स में सोलर कैपेसिटेंस के ऊपर हम उसकी जो सिमुलेशंस हैं, ई टैब के अंदर जो सिमुलेशंस हैं, चूँकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा, जो अपकमिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमारी सिमुलेशन से रिलेटेड है, वो हमारी AI से रिलेटेड है। ठीक है, अब उसमें बहुत ज़्यादा जो है हमें काम ऑलरेडी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को हम इक्विप कर रहे हैं ताकि वो आगे जाके फील्ड के अंदर compete कर सकें। ठीक है, अब पावर जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम जो पावर है उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक कासा 1 का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल एशिया टू साउथ एशिया। ठीक है, कासा 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम पावर को सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया में पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं। अब ये सारा कुछ HVDC लाइंस के ऊपर हो रहा है। तो इसके बैक एंड पे जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं, जो इसमें MS में भी हम पढ़ा रहे हैं, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम प्लानिंग है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्लानिंग है, इसके अलावा एनर्जी मैनेजमेंट है, पावर जनरेशन इकोनॉमिक्स है। ये वो कोर सब्जेक्ट हैं और मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि MS में भी हम पढ़ा रहे हैं और BS में भी हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को हम इसके साथ डील कर रहे हैं। उसके अंदर स्टूडेंट्स इनकी बेसिकली सिमुलेशन, इनका डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं जो कि उनके बाद में उनको फील्ड में काम आ रही हैं। अब अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास लैब्स के अंदर वेल डिफाइंड पावर स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करेंगे, इसके हाई वोल्टेज AC के ऊपर काम करेंगे, हाई वोल्टेज DC के ऊपर काम करेंगे, तो उसको इनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब में और सिंध के अंदर, ये 83 शुगर मिल्स हैं जिनकी अकॉर्डिंग टू नेपरा, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेशन अथॉरिटी के रूल्स के तहत ये तकरीबन 3000 मेगावाट के करीब पावर जनरेट कर सकते हैं थ्रू बगास टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली शुगर केन के ज़रिए से पावर जनरेट करते हैं। इसमें भी हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जो है मुजफ्फरगढ़ के अंदर शुगर मिल्स में काम कर रहे हैं, जो कि उनके बैक एंड पे जो उनका पावर जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो स्टडी है, वो हमने अपने करिकुलम में ऐड किया हुआ है। मॉडर्न वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आगे हमारे पास जो फील्ड्स हैं, उनकी जो जॉब प्लेसमेंट है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से स्टूडेंट्स जो है सिमुलेशन के ऊपर काम करते हैं, ई टैब के ऊपर काम करते हैं, LT स्पाइस है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, स्कैप्स हो गया, PV सिस्ट हो गया, जिसमें स्टूडेंट्स प्लान करते हैं कि हमने सोलर पावर कहाँ पर जो है वो प्लांट करना है और उसके थ्रू, सोलर पार्क के थ्रू हमें पावर जनरेशन कहाँ से ज़्यादा मिल सकती है। फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है जो कि डिफरेंट एरियाज़ में लिया के अंदर भी इंस्टॉल हुआ है, उसमें भी काफ़ी सारे हमारे अलुमनाई उसमें काम कर रहे हैं। तो इससे ये है कि जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल का स्ट्रक्चर है उसमें पावर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और उसकी प्लेंटी ऑफ जॉब्स हैं। इसका जो स्कोप है आने वाले टाइम में जो है इसके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, AJK के अंदर सुक्की किनारी एक प्रोजेक्ट है जो कि CPEC के अंडर भी वो कंप्लीट होने वाला है आगे आने वाले वक्तों में। इसके अलावा साहिवाल का कोल फायर्ड, बिन कासिम कराची का कोल फायर्ड पावर प्लांट, इसके अलावा जो है हब बलोचिस्तान का कोल फायर्ड पावर प्लांट और दूसरे सोलर के लाइक कायद-ए-आज़म सोलर पार्क बहावलपुर में ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा लिया में 100 मेगावाट का जो है वो सोलर पार्क है। इन सारा में ऑलरेडी हमारे अलुमनाई काम कर रहे हैं। एनर्जी मैनेजमेंट में आप ये सारा स्टूडेंट्स को हम पढ़ाते हैं और एनर्जी मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट है हमारे पास जो कि मास्टर में हम स्टूडेंट्स को उसमें जो है काफ़ी सिमुलेशंस वगैरह हैं और उसका डिज़ाइन है और एनर्जी को किस तरह से मैनेज करना है। और वेरी के पावर जनरेशन जो है वो सिटी सेंटर्स में तो हो नहीं सकती। ये हमारे पास डिफरेंट फार अवे जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हो, लाइक कोल, लाइक हाइड्रो, लाइक जो है सन की अवेलेबिलिटी हो और उसकी रेडिएशन जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है थ्रू कन्वेंशनल एंड थ्रू नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। सो दीज पावर जनरेशन वी कैन get from all these resources and we transmit it to city centers, to load centers. Overall students can learn more about that. इसका जो सिस्टम है विद द पैसेज ऑफ टाइम मजीद एडवांस होता जा रहा है। ठीक है, इसमें इनोवेशंस आ रही हैं। स्मार्ट सिस्टम, स्मार्ट ग्रिड का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली यही है कि हमारे पास जो पावर है उसमें लॉसेस क्या हों, कम से कम हो। हम वेरी फार अवे पॉइंट से पावर जो है हम वहाँ से
ला सकें अपने सिटी सेंटर्स तक, और उसको पावर को इफ़ेक्टिवली हम जो है यूज़फुल बना सकें, ताकि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको जो यूनिट की कास्ट है वो क्या पड़े, कम से कम पड़े। इसमें यूएसएड के भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग हैं, जिसमें ऑलरेडी हमारे एमएस के स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। मैपको के अंदर भी, मुल्तान के अंदर भी हमारे जो एमएस के स्टूडेंट्स हैं वो इसको जो है कॉपरेट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर, और उसमें उनके प्रोजेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस है। Munif Khan, wonderful. I think you have said that there is a lot of scope for the Lot of electrical scope. engineers in the future, Dr. Sahab. And only it's a matter of now our job is to train them to the best suitability, give them all the courses and give them on hand experience in the lab, so that when they go out they should be able to do their jobs. And as you said it, Dr. Sahab, बहुत अच्छा कि आप वो भी system में you really teach them how to communicate things and how to solve problem solving approach through teamwork. So this is something commendable. Gentlemen, this was our first segment. Now in the second segment we'll have two more guests, and we will introduce you. They will be talking about the electrical machines and the control engineering. So we will have a break and then we'll talk with our two faculty members. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. Welcome back, Ji. Now we like to start with our second segment with our two faculty member, Adnan, who deals with control engineering, and Usman, he deals with electrical machines. बताइए जनाब, आप अदनान साहब, control engineering में what areas do you cover and what kind of labs we have? Thank you, sir. I would like to say no other field of engineering can work without the involvement of electrical engineering in it. And when talking about the control system manages commands and regulate the other devices and system using control loops in it. उसमें सर हम regulate करते हैं system को और system को automation की तरफ लेके जाते हैं. Like in our industries, उसमें हमारे पास पूरा सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रहा होता है, एंड आवर सिस्टम्स रोबस्टनेस इज़ द मेन थिंग विच वी आर डीलिंग ऑन इट, वर्किंग ऑन इट. तो कोई एरर आता है, कोई डिस्टर्बेंस आता है, तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली उस डिस्टर्बेंस के साथ डील करता है और उसको एलिमिनेट करता है. दैट इज़ द कोर पर्पस ऑफ द होल कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल लूप्स इन इंडस्ट्रीज़. इसी तरह हमारी जो एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, embedded system basically incorporates the computational systems like microcontrollers, microprocessors in it, and to control a specific function or specific I mean say specific purpose. हमारा जो है हमने कोई operation control करना है, it can work individually as a system or it can work as a part of a larger system. तो जिस तरह पहले हमारे जो गेस्ट थे वो बता रहे थे एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो वो डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट हमारी अप्लाइंसेस का, डिफरेंट ऑपरेशंस का. सो ऑल दीज सिस्टम्स लाइक आई वुड लाइक टू से कि एक टॉय कार से लेके हमारा जो है ऑटोमेशन सिस्टम जो हमारे पास हैं, जो लाइक इंडस्ट्रियल कंट्रोल है हमारे पास, जो है वो अदर सिस्टम्स हैं, उनके अंदर एम्बेडेड सिस्टम मौजूद होता है, माइक्रो कंट्रोलर चिप मौजूद होती है. अच्छा, एम्बेडेड सिस्टम में सर हमारे पास ये है कि सिस्टम जो हमारे पास एक आइडिया है उसमें हम उसको प्रोग्राम करते हैं, एल्गोरिदम हमारा डिज़ाइन करते हैं, उसको प्रोग्राम करते हैं, एंड देन वी डाउनलोड इट इनटू अ माइक्रो कंट्रोलर चिप और उसको इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करके हम अपना जो है फंक्शन वो अचीव कर रहे होते हैं. इसमें सर हमारे पास बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं जिसके अंदर हम एम्बेडेड सिस्टम को यूज़ करते हैं.
इसमें IoT एक बहुत इमर्जिंग फील्ड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें हम ISP के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी इसके ऊपर करवा रहे हैं। IoT सर बेसिकली है कि हम दुनिया में कहीं पे भी बैठ के ऑल ओवर द वर्ल्ड हम कहीं पे भी इंटरनेट के थ्रू अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जिस तरह आप देख रहे होते हैं हमारे CCTV कैमरास की फुटेज जो है हम दुनिया में कहीं पे भी बैठ के अपने स्मार्टफोन्स के ऊपर या कहीं वेब लिंक के ऊपर हम देख सकते हैं। दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ IoT। इसी तरह हम अपने होम ऑटोमेशन है, अपने घर की अप्लाइंसेस हैं, उनको हम कहीं पे बैठ के उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनका स्टेटस चेक कर सकते हैं। लाइक वी कैन कंट्रोल अदर, जिस तरह हमारे पास टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, AC हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। सो इंटरनेट के थ्रू हम बाहर से बैठ के नॉट फिजिकली प्रेजेंट एट दैट स्पेसिफिक प्लेस जिस पे हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, बट वी कैन लिंक विद दैट डिवाइस एंड वी कैन कंट्रोल इट थ्रू द इंटरनेट। इसमें सर ISP के अंदर हमारे पास लैब्स मौजूद हैं, एम्बेडेड सिस्टम की लैब भी मौजूद है जिस पे हम माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर स्टूडेंट्स को जो है वो एक्सपीरियंस देते हैं। ये कौन से सेमेस्टर में प्रैक्टिकल्स कराते हैं आप? सर 4th सेमेस्टर में। 4th में। जी सर। और 5th सेमेस्टर में सर हमारे पास जो है वो कंट्रोल सिस्टम्स है। कंट्रोल सिस्टम में सर हमारे पास हमने लैब जो है डिज़ाइन की है बिल्कुल जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे पास जिन चीज़ों को हम डील कर रहे होते हैं उनके ऊपर हमारे पास लैब मौजूद है। लाइक इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे पास PID कंट्रोल्स होते हैं जो मोस्टली जितने भी हमारे कंट्रोल ऑपरेशंस हैं वो PID मोस्टली उनमें जो है वो PID बेस्ड ऑपरेशन हो रहा होता है। तो उसमें हम एरर्स को एलिमिनेट कर रहे होते हैं। लाइक वी हैव सेट अ वैल्यू ऑफ अ टेम्परेचर, लाइक वी डिज़ायर इट टू बी एट 50 सेल्सियस। तो अगर हमारा टेम्परेचर 50 सेल्सियस से डेविएट करेगा तो our system will automatically take it to the 50 Celsius, eliminating the error in it. So self-correcting system. और इसके अलावा हमारे पास जो है PLCs that are widely used in industries automation. हम अपने कंट्रोल लैब के अंदर स्टूडेंट को PLCs के ऊपर ऑपरेशन एक्सपीरियंस देते हैं। उसमें हम स्टूडेंट को PLC की प्रोग्रामिंग करना, उसकी यूटिलाइजेशन विद द अदर पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल, एलिवेटर कंट्रोल ऑपरेशंस, ठीक है, इनके अंदर हम जो है उसको एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को जो है वो देते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आई थिंक आपने काफ़ी हमें बताया अदनान साहब रिगार्डिंग द कंट्रोल इंजीनियरिंग। उस्मान साहब आप बताइए अबाउट इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड हाउ टू यूटिलाइज देम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशीन्स। Thank you for inviting me, sir. Sir, I am dealing with electrical machines since last 5 years. Electrical machine, we have a dedicated electrical machine lab in ISP in which we have AC machines and DC machines and all type of AC and DC machines and components, their components. सर हमारे पास बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल मशीन है ना वो ह्यूमन लाइफ का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो आपको अपने हर तरफ जो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स नज़र आएंगी, फ़ैन, ब्लोअर, ड्रायर, जूसर, हर चीज़ से लेकर ये सब क्या है इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं। हम अपनी लैब के अंदर जो है स्टूडेंट्स को, हमारे पास 3 आवर्स की लैब होती है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को सारी हर किस्म की AC और DC मोटर्स के ऊपर और जनरेटर्स के ऊपर हम उनका पूरा एक्सपीरियंस, हैंड ऑन एक्सपीरियंस जो है उनका कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स का। वो इस एक्सपीरियंस को हमसे गेन करके अपने लाइफ के अंदर जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा 3 क्रेडिट और की हम थ्योरी पढ़ाते हैं सेम सब्जेक्ट की जो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स की। और हमारे पास जो मास्टर सब्जेक्ट है उसके अंदर भी हम जो है मास्टर की हमारा जो है प्रोग्राम है उसके अंदर भी हम एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं एडवांस इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन, जिसके अंदर हम सेम मशीन जो है उनकी डिज़ाइनिंग के बारे में उनको बताया जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन की इंपॉर्टेंस वैसे तो हमारे पास है ही है, जो हम जो क्लासिकल सिस्टम हमारा चलता आ रहा है उसके हिसाब से, लेकिन फ्यूचर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल मशीन है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती जा रही है हमारी लाइफ के अंदर। अगर आप देखेंगे तो कुछ अर्सा पहले तक जो है मशीन्स उनकी तादाद कम थी, आपके इर्द गिर्द जो मशीन नज़र आ रही थी, अब सारी की सारी जो है इलेक्ट्रिकल मशीन्स में कन्वर्ट होती जा रही हैं चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। और ऑटोमेशन जिसे हम कहते हैं, जैसे अभी सर ने एक्सप्लेन किया है कि हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ऑटोमेशन के अंदर हम जो है यूज़ करते हैं एक्चुएटर, और एक्चुएटर जो है वो बेसिकली ये हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर्स जो होती हैं यही एज ए एक्चुएटर काम करती हैं। इसके अलावा हमारा जो जनरेशन साइड है जहाँ से हम जो है एनर्जी जनरेट कर रहे होते हैं वहाँ पे भी हमारे पास जो है यही इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं, एज अ जनरेटर हम उसको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो फ्यूचर लाइफ है इनकी वो हमारे पास स्टूडेंट्स को हम बताते हैं और ये चीज़ें सिखाते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपके पास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं
वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं। कहते हैं 2030 के बाद जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट सारी की सारी जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनना शुरू हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जो है हमारे पास सेम मोटर जो होती है इलेक्ट्रिक मोटर वही यूज़ होती है, हम इसको वहाँ यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो टेस्ला आजकल जो है ना, टेस्ला मोटर जो हमारी टेस्ला जो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है, इसलिए और बहुत सारी कंपनीज हैं जो बना रही हैं। फिर सबसे मेन जो इसके अंदर एडवांसमेंट आ रही है ना वो आ रही है इन इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग सिस्टम। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसको डिज़ाइन किया था, तो हमने उसको बैटरी जो है ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ की हमने। जो हम बैटरी को चार्ज करते थे और उसको चलाते थे उसमें चार्जिंग थी, वो हमारे पे एक हर्डल थी कि जी कुछ अरसे के बाद हमें रिचार्ज करनी पड़ती थी अपनी बैटरी। उसको ख़त्म करने के लिए जो है हमने सबसे पहले हमने प्लग इन सिस्टम ख़त्म किया और हमने वायरलेस चार्जिंग इंट्रोड्यूस करवाई इलेक्ट्रिक व्हीकल की, जो कि हमारी उन बैटरीज को वायरलेसली चार्ज करती थी। लेकिन फिर उसके भी हम एलिमिनेट करने के लिए, उन बैटरीज को एलिमिनेट करने के लिए जो हम लेटेस्ट काम कर रहे हैं वो डायनामिक जो है हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम आया हुआ है सर, जिसमें हम एक गाड़ी डिज़ाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है हमारे पास और वो रोड ऑन रोड जो है वो चल भी रही होती है, एट द सेम टाइम उसका चार्जिंग फिनोमिना भी बिल्कुल साथ साथ ऑपरेट हो रहा होता है। इसके अलावा सर जी हमारे पास जो है मशीन लर्निंग, बेसिकली हम अपनी ये मशीन्स हैं इनको जो हम AI कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम उस फिनोमिना को भी अपनी मशीन्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक मशीन हो, हम उसको जस्ट जो है एक इनपुट दें और वो हमारा पूरा जो प्रोसेस होता है, पूरा काम होता है उसको कंप्लीट कर दे। उसके लिए अगर मैकेनिकल सिस्टम्स के अंदर हमारे पास CNC मशीन्स यूज़ होती हैं, कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन्स हैं जिनके ऊपर हम एक मॉडल जो है उसको पैरामीटर्स डिफाइन कर देते हैं और उसको एक कोड दे दिया जाता है कि आपने इस तरह का कंपोनेंट जो डिज़ाइन करना है, तो वो मैनुअल नहीं होती बल्कि वो कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन्स हैं और सेम डिज़ाइन जो कि आप कंप्यूटर डिज़ाइन उसको देंगे ना, कैड का डिज़ाइन उसको मिलेगा, वो उसका जो है कंपोनेंट वो डिज़ाइन करके आपको प्रोड्यूस कर देती है वो मशीन। इसके अलावा कौन से सब्जेक्ट सेमेस्टर में आप ये सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स का पढ़ा रहे हैं? ये सर हमारे पास जो है 5th सेमेस्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल मशीन का सब्जेक्ट होता है, इसमें हम पढ़ाते हैं। इसके अलावा जो मास्टर्स के अंदर जो है हमारा 2nd सेमेस्टर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन का सब्जेक्ट होता है, जो एडवांस सब्जेक्ट है एडवांस सब्जेक्ट वो हम वहाँ पढ़ाते हैं। जी OBE के तहत आप सारा OBE के वाशिंगटन ऊपर, अकॉर्ड? जी सर वाशिंगटन अकॉर्ड के ऊपर हम ये जो है इसको पढ़ाते हैं, OBE सिस्टम है हमारे पास। और थैंक यू उस्मान। थैंक यू। I think that today we had a wonderful explanation from the experts of the electrical engineering, especially Dr. Rizwan has given a wonderful explanation about what the electrical department is, how many branches are there, what kind of degrees are they giving, and what kind of system Washington Accord we are following under the OBE system, which is practically student focused. So previous system was teacher focused, but this is a student focused. Has the student really picked up and developed those attributes? उसके बाद हमारे Munib Khan, he talked about the power generation, distribution and transmission and different aspects of that. Then our Adnan has talked about the control engineering and the embedded system, and Usman has described about the electrical machines. I think in this session we had a couple of ideas about the electrical system. Inshallah in future we'll come along and talk about more things. So you have to, especially to our students who are willing to seek admissions, I would advise them, don't roam around, don't go here and there, just come over to the Institute of Southern Punjab. Our university is one of the best in the South Punjab. You don't have to go to bigger universities, to other places, bigger cities. You will only add the expenses, but we have the expertise here. Dr. Saab is a PhD from one of the leading university of France. So I think you come and meet them and discuss with them. All the faculty is highly qualified, and discuss with them and choose for electrical engineering. You know, one of the beauty of our admission office is they also do the counseling as well. When you come to ISP, you discuss with them, they will tell you what is suitable for you, which department you should pick up. I should say you should come to the School of Engineering, and we have got electrical engineering, we have got mechanical engineering, we have civil engineering. Now we are going to go into the computer system engineering. So we have got around 13, 15 PhDs with us. So one of the best electrical engineering departments. Come and see the labs they have got. Well equipped, state of the art equipment there. So I think we'll meet you next time. Thank you very much. God bless you.